Good evening, students. We'll begin with our history lecture today. So, we were studying chapter number 3 in your history syllabus last time. It was about the effects of the British rule in India. I have just shown you your textbook first. As you can see here on the screen, we have already finished the first page of your textbook. There is a part of it which is remaining. The rest of it we had already discussed it last time. So talking about the British rule in India, we see that Britishers, they ruled over India for almost 150 years, or we can say even for more than that. ठीक है, ऐसा देखा जाए तो हम लोग 300 साल ही बोल सकते हैं. But honestly speaking, if we give it an official record, it's for sure for 150 years. Okay. So apart from Britishers, who else were interested in India? I had told you this last time, if you people do remember. I mean, if you can see the PowerPoint presentation next, I'll just share it on the screen again. Okay. So as you can see here, I had shown you this last time. Apart from the Britishers, we see that there were these Portuguese people, the Dutch people, the French people, and at the end we had the Britishers coming down to India all the way from Europe. Britishers, they stood out to be the most powerful one. They were able to defeat the French, the Dutch, and even the Portuguese. At the end, we see that the Portuguese and Britishers, they got into an agreement. दोनों के बीच में फिर फाइनली फ्रेंडशिप हो जाता है और उसके वजह से फिर दोनों शांति से इंडिया पे रूल कर रहे थे. Though we see that the Portuguese people were able to rule over India's very minutest regions, Britishers, they ruled over the entire landmass of India at a stretch. Next, we had studied about Mumbai. I had told you that Mumbai was supposed to be an administrative center for all these Britishers, and the areas besides Mumbai, they were under the control of the Marathas. So the ruler of Maratha in those days was none other but Peshwa Madhav Rao, if you guys remember. पेशवा माधव राव जो था, ये वो टाइम के मुंबई के आसपास के एरिया का वो रूलर था मराठा एम्पायर का. पेशवा माधव राव, once he dies, his uncle Raghunath Rao, he wants to become the next king, he wants to become the next पेशवा. तो वो ब्रिटिशर्स की मदद लेने जाता है और फिर धीरे धीरे ब्रिटिशर्स वो मराठा एम्पायर के अंदर घुसने लगते हैं. From 1774 till 1818, there were 3 Anglo-Maratha wars which had been fought. By the time it was the third Anglo-Maratha war, Britishers, these people, they could completely rule over the Maratha Empire. As I had told you about this person last time, his name was Lord Richard Wellesley, and he was the Governor General of the British East India Company. So he came down to India in the year 1798, and he introduced something called a subsidiary alliance. I had already discussed the clauses of the subsidiary alliance with you guys last time. So if you people remember, subsidiary alliance बाजीराव द टू ने साइन किया था लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली के साथ, और इस सब्सिडरी अलायंस को ट्रीटी ऑफ वासाई के नाम से जाना गया है, which was then signed in the year 1802. इसके बाद सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ जहाँ पे मराठास हार गए और ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं. And then there was the third Anglo-Maratha war, in which again the Marathas, they lost the battle and Britishers, they won at the end. Above all, उसके बाद हम देखते हैं कि दौलत राव शिंदे एक और मराठा गवर्नर जनरल था जिसको वापस मराठा साम्राज्य चाहिए था. बट वो टाइम पे जो ब्रिटिश ऑफिसर था, हिज नेम वाज जनरल लेक. General Lake, he was able to defeat Daulat Rao Shinde, and he was able to capture the Maratha Empire all again. Next, hereafter, you can see the map of Maharashtra, and within the map of Maharashtra, you can see a small little district over here, which is called as Satara. तो महाराष्ट्र मैप के ऊपर अभी तुम्हें एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है, which is the district of सातारा. सातारा का वो टाइम पे जो राजा था, his name was छत्रपति प्रताप सिंह. So the name is Pratap Singh of the king, and he has been given this honorary title. He has been given this pompous title of Chhatrapati. Okay. एक इंसान हमेशा उसके बाजू में एक छाता लेके खड़ा रहता था to show the dignity of the king, and that is why he is called as Chhatrapati Pratap Singh. So
He was the ruler of Satara in those days. He was a very nice king, but unfortunately, इसके जो परदादा थे, इनके साथ जो रूल करते थे पहले, इन्होंने ऑलरेडी सब्सिडरी अलायंस ब्रिटिशर्स के साथ साइन कर दिया था. तो छत्रपति प्रताप सिंह बहुत ही स्ट्रगल कर रहे थे while he was a king. छत्रपति प्रताप सिंह जो अपनी राजगद्दी पे बैठे थे, अपने कोर्ट में बैठे थे, तो वो टाइम पे हम देखते हैं कि उनके ही कोर्ट में एक ब्रिटिश ऑफिसर को वहां पे तैनात किया गया है. So there was a British officer who used to always stay in the court of छत्रपति प्रताप सिंह. और छत्रपति प्रताप सिंह जो भी काम कर रहे हैं उसके ऊपर वो कड़ी नजर रखते थे. So here is it in your textbook. We see that although the Peshwaship had come to an end, हम देख रहे थे कि मराठा एम्पायर तो खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी छत्रपति प्रताप सिंह he was still ruling over सातारा. वो टाइम पे छत्रपति प्रताप सिंह के कोर्ट में एक ब्रिटिशर काम करता था जिसका नाम था ग्रैंड डफ. So Grand Duff was one such British officer who used to work in the court of Chhatrapati Pratap Singh at that time. ये ग्रैंड डफ जो था ये छत्रपति प्रताप सिंह को इतना परेशान करता था, उसके ऊपर नजर रखता था और जो भी डिसीजन छत्रपति प्रताप सिंह लेता था वो ग्रैंड डफ जाके ब्रिटेन के राजा को बता देता था. सो छत्रपति प्रताप सिंह को एक टाइम के बाद ये ग्रैंड डफ ने निकाल दिया. ग्रैंड डफ बीइंग अ ब्रिटिश ऑफिसर, he one fine day removes Chhatrapati Pratap Singh from his throne. So that means he was being dethroned. मतलब राजा को जब ही उसकी राजगद्दी से निकाल दिया है तो उसके लिए एक टर्म यूज होता है जिसको dethroned बोला जाता है. So when Chhatrapati Pratap Singh, he was the king of Satara, and when Grand Duff was keeping an eye over him, ये ब्रिटिश ऑफिसर ग्रैंड डफ ने अपनी सेना के साथ मिलके वो छत्रपति प्रताप सिंह को निकाल देते हैं. अभी वही टाइम पे छत्रपति प्रताप सिंह के नीचे एक ऑफिसर काम करता था और इस ऑफिसर का नाम था रैंगो बापूजी गुप्ते. ठीक है. सो ग्रैंड डफ, हियर इज द पिक्चर ऑफ ग्रैंड डफ एंड यू कैन सी दैट ही रिमूव्स छत्रपति प्रताप सिंह फ्रॉम हिज थ्रोन. लेकिन वो टाइम पे रैंगो बापूजी गुप्ते वो अभी भी छत्रपति प्रताप सिंह के नीचे जो काम करते थे, ये बहुत ही लॉयल थे छत्रपति प्रताप सिंह से. वो खुद ब्रिटेन जाते हैं और ब्रिटेन जाके वो ब्रिटिशर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज वो राजगद्दी उनको वापस दी जाए. बट देन वी सी दैट इवन रैंगो बापूजी गुप्ते वाज बीन रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोजीशन बाय लॉर्ड डलहौजी, हु वाज अगेन वन सच ब्रिटिश ऑफिसर. लॉर्ड डलहौजी ने उस समय में एक कानून निकाला था जिसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. So Lord Dalhousie, he had introduced one of the laws in India in those days, and this law was called as the Doctrine of Lapse. Now, as per this law of Doctrine of Lapse, इसका मतलब ये था कि ये कानून के तहत जो लॉर्ड डलहौजी लेकर आए हैं, since छत्रपति प्रताप सिंह and रैंगो बापूजी गुप्ते, they did not have their own biological kids. इनके अपने खुद के कोई वारिस नहीं थे जो वो ये राजगद्दी को संभाल पाए, इसीलिए पूरा का पूरा सातारा ब्रिटिशर्स हड़प कर रहे थे. ये रीजन लॉर्ड डलहौजी ने दिया और फिर पूरा का पूरा सातारा ब्रिटिशर्स के हाथ में चला जाता है. But talking about this person, Rango Bapuji Gupte, and his king, whose name was Chhatrapati Pratap Singh, अगर छत्रपति प्रताप सिंह के बारे में बात करें, he had done a lot of good work for his people. As you can see here in the textbook, you have a pink patch over here. यहाँ पे तुम्हें ये एक pink patch दिखेगा जहाँ पे all the contributions of छत्रपति प्रताप सिंह, they have been jotted down over there. You can see that Chhatrapati Pratap Singh, he built one water tank in the backyard of the Yayateshwara temple. तो यवतेश्वर टेम्पल जो है महाधारा एक और टेम्पल है, ये दोनों टेम्पल्स जो है सातारा में आते हैं. तो वहाँ पे इन टेम्पल्स के बाजू में एक वाटर टैंक इन्होंने खुद बिल्ड करवाया था, so that the common people can go there and fetch free water. He had built roads, he had planted trees on both the sides of the roads. In fact, he had opened many schools for boys and girls in order to teach them some good subjects such as Sanskrit, Marathi, and English. He had a printing press with himself. इन्होंने खुद ने एक प्रिंटिंग प्रेस को एस्टैब्लिश किया था.
and he had published many books in his times. In fact, उन्होंने खुद ने एक बुक लिखा था और ये बुक का नाम है सभा नीति. It's a book on politics, and later on even this book got printed and published. He also builds roads on the various sides of his entire kingdom. For example, that you can see here again. Okay, here. So this temple which you can see, it's Yavateshwara temple. So the temple which you can here see is Yavateshwara temple, which we were talking about. तो ये यवतेश्वर टेम्पल के पीछे वो एक वाटर टैंक ओपन करवाते हैं, which is useful for the common public staying besides. He builds road all the way, concrete roads बनवाते हैं so that the transportation gets way more easier, all the way from Satara to Mahabaleshwar, from Mahabaleshwar to Pratapgarh, and from Pratapgarh to Mahad. So these are the road constructions which he brings about in order to make the travel more convenient. Finally, he was removed by Grand Duff. Rango Bapuji Gupte was removed by Lord Dalhousie. So that's all about Chhatrapati Pratap Singh, which we studied about in this chapter. If you can just see here, the entire answer has been given here. You can be asked in your papers to write a short note on Chhatrapati Pratap Singh or even the contributions of Chhatrapati Pratap Singh. Now I'll get on to the most important part of this chapter, and that is about the effects of the British rule in India with their dual government system. ठीक है, तो ये चैप्टर का सबसे important part है. As you can see here, we are going to discuss some few technical terms over here, and the very first one is the dual government. Now what is dual government exactly? मुझे ध्यान से सुनना. Here in the textbook, I will show you how you can remember the entire answer. Okay, so please be attentive with it. When I talk about the dual government, जब भी मैं dual government की बात करती हूँ, तो यहाँ पे बेस्ट एग्जाम्पल बंगाल का दिया गया है. तो ब्रिटिशर्स के ज़माने का जो इंडिया का मैप था, उसमें जो बंगाल रीजन आता था, ये बंगाल रीजन का जो नवाब था, ये बंगाल रीजन का जो राजा था, उसने अलाउ किया था ब्रिटिशर्स को बंगाल में आने के लिए, और ब्रिटिशर्स को बोला कि तुम बंगाल में ट्रेड कर सकते हो. ठीक है. सो इन बंगाल वी सी दैट द नवाब ऑफ बंगाल, he looks after the entire Bengal, but at that same point of time we had one such British officer whose name was Robert Clive. ये रॉबर्ट क्लाइव क्या करता था? वो बंगाल में पूरे ट्रेड का काम धाम संभालता था. यहाँ पे क्या हुआ? पावर्स का बंटवारा हो गया. जो बंगाल का नवाब था, जो बंगाल का राजा था, उसको बंगाल की राजगद्दी पे बैठ के क्या काम करना है? Then he was supposed to maintain the law and order. वो बंगाल के कायदे कानूनों का देखभाल करेगा. लेकिन रॉबर्ट क्लाइव, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल है, ये रॉबर्ट क्लाइव, ये ब्रिटिशर्स बंगाल में क्या करेंगे? वो बंगाल में रेवेन्यू को कलेक्ट करने का काम करेंगे. मतलब जब भी किसानों, मजदूरों और बंगाल में रहने वाले लोगों से जब भी टैक्स वसूली करने का टाइम आता है, तो वो रेवेन्यू कलेक्शन, वो टैक्स कलेक्शन का काम ब्रिटिशर्स करेंगे. I'll again repeat, when we talk about the province of Bengal during the times of Britishers, तो हम देखते हैं कि बंगाल प्रोविंस का जो राजा था, जो नवाब था, उसको बंगाल प्रोविंस का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था, उसको बंगाल के कायदे कानूनों को संभालना था. बट एट दैट सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो बंगाल में रहने वाले जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, फॉर एग्जाम्पल रॉबर्ट क्लाइव, who was actually the governor general of the British East India Company, इस रॉबर्ट क्लाइव का काम क्या था बंगाल में रह के? तो उसे टैक्स वसूली करना था लोगों से.
He was supposed to collect the revenues from the entire region of Bengal. तो हम देखते हैं कि बंगाल के दो पावर्स का बंटवारा हुआ है, एक लॉ एंड ऑर्डर को संभालेगा और दूसरा टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करेगा. Such a system of government where the powers have been divided is called as the dual government system. तो ऐसी सरकार जहाँ पे नवाब और ब्रिटिशर्स के बीच में पावर्स को डिवाइड किया गया है उसको हम ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम बोलते हैं. So I hope you guys have understood the definition of the dual government system. It's here in your textbook. Okay. Fine. So we'll move ahead now. Okay. So next we'll move ahead talking about the dual government system. ये dual government system के बहुत सारे disadvantages थे. There were many bad advantages of this dual government system. Okay, many disadvantages of this dual government system. Now what was it exactly? हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश ऑफिसर्स, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो धंधा चलाती थी बंगाल में, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मर्चेंट्स होते थे, जो ब्रिटिश ट्रेडर्स इंडिया में आके वो ब्रिटिश में इंडिया में आके जो ट्रेडिंग करते थे, जो धंधा चलाते थे, ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के मर्चेंट्स थे, ये बंगाल से पैसे उठाते थे, इंडिया में कमाते थे, अपनी जेब भरते थे उससे, और वापस जब भी ब्रिटेन देश जाते थे तो किसी और को ट्रेड करने मिलता नहीं था. Again, I will repeat this thing. Talking about the British East India Company. British East India Company में वो ब्रिटिश के मर्चेंट्स थे जो इंडिया में ट्रेड करने आते थे. जब भी वो इंडिया में ट्रेड करने आते थे, when they used to come down to India to trade here in India, the other British merchants living there in England were not allowed to come here. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ ही ब्रिटिश ट्रेडर्स को अलाउड है इंडिया में आके इंडिया में धंधा करने के लिए. इसके वजह से ब्रिटेन में रहने वाले बहुत सारे ब्रिटिश मर्चेंट्स थे जो इस चीज से बहुत ही नाराज है. And that is why we finally see that the British Parliament and England, okay, इंग्लैंड में रहने वाले जो दूसरे ब्रिटिशर्स थे और ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थे, ये इस चीज से बहुत ही नाराज हैं. They used to be very jealous of those British merchants who used to come down to India. They used to earn money and then they used to go back to Britain. तो इसके आगे हम देखते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट और भी ज्यादा सख्त कानून बनाएगी इन सारे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए. I had already explained you in the previous chapter what is British East India Company, if you guys remember that. Okay, so I'll once again just show you. Okay, so he is Robert Clive and he was the Governor General of the British East India Company. इसके अलावा here you can see Lord Warren Hastings. ठीक है, so Lord Warren Hastings, who was he exactly? Again talking about Lord Warren Hastings, then even he was the Governor General of India. ठीक है, यहाँ पे तुम्हें दिखेगा Lord Warren Hastings, he became the Governor General of India. यहाँ पे दिखा. Okay, so now I'll just continue with the PPT. So Lord Warren Hastings, when he became the Governor General of India, जब ये इंडिया के गवर्नर जनरल बनते हैं तो वो टाइम के ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने, उस जमाने में ब्रिटेन की सरकार ने, ब्रिटेन के राजा ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में काम करती थी उसके लिए बहुत ही सख्त कानून बनाया और ये कानून का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. सो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, जिसको तुम अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये एक ब्रिटिश गवर्नर जनरल था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में ट्रेड करती थी. इसके अलावा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में ट्रेड करने वाले जो मर्चेंट्स थे ये बहुत ही घूसखोर हो गए थे. ये आए दिन अपनी जेब भरते हैं पैसों से
और ब्रिटेन में जाके वो दिखाते हैं कि वो कुछ भी अर्न नहीं कर रहे इंडिया से। तो ब्रिटेन के राजा को बहुत अच्छे से पता चल गया ईस्ट इंडिया कंपनी उल्लू बना रहा है ब्रिटेन के राजा को। तो ब्रिटेन के राजा ने और ब्रिटिश की पार्लियामेंट ने मिल के एक बहुत ही सख्त कानून बनाया जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मर्चेंट्स के लिए। ओके, नाउ व्हाट हैपेंड एज पर दिस? तो यहाँ पे उसका आंसर मिलेगा, जस्ट लुक एट दिस। इसके बाद अभी ये बोला गया है कि लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने मुंबई और मद्रास ये दोनों प्रोविंसेस में उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया। और उसके अलावा लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स आज के बाद एक कमेटी के साथ बैठेंगे, एक टीम के साथ बैठेंगे जिसमें 4 मेंबर्स होंगे और ये कड़ी नजर रखेंगे ऑन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द वर्किंग ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। Next, you can see another act which had been passed by the Britishers again. Talking about the Regulating Act of 1773, 1773 के Regulating Act के बारे में अगर हम बात करें, so here we see कि ये कुछ ज़्यादा पावरफुल एक्ट नहीं था, ये उतना काम का एक्ट नहीं था। तो ब्रिटेन के राजा ने इससे भी कड़क कानून, इससे भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कानून पास किया जिसको हम पिट्स इंडिया एक्ट बोलते हैं ऑफ 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पास हो जाने के बाद वापस ब्रिटेन के राजा ने दूसरे कानूनों को पास किया था इन 1813, इन 1833 एंड इन 1853। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आता है, उतना स्ट्रिक्ट नहीं था वापस, तो वापस 1813, 1833, 1853 में वापस नए कानूनों को पास किया गया था। I'll just share the textbook with you guys now, if you can see over here. When Pitt's India Act 1784 was being passed by the British Parliament, तो यहाँ पे ये बोला गया था कि आज के बाद एक टीम होगा और इस टीम का नाम होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। This board of control, this team will keep a strict eye on the British East India Company. Okay, लेकिन ये कानून भी कुछ काम का नहीं है। इसके लिए फिर आने वाले सालों में in 1813, in 1853, in 1833, there were new changes and there were new laws which had been passed. Now, what is more important over here? जब भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पे रूल कर रही है और जब भी ब्रिटेन का राजा ब्रिटेन देश में बैठ के इंडिया पे रूल कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, हम देखते हैं कि इंडिया में ब्रिटिश रूल जो आया है, अभी तो पूरी की पूरी जमीन ब्रिटिशर्स के पास है, तो ब्रिटिशर्स इस देश को चलाते हैं। So there are civil services, there are military services, there are police forces and judicial system. ये 4 मेन पिलर्स थे पूरे के पूरे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के। So which were the 4 main pillars of the British administration? It's the civil services, military, police force and the judicial system. हम एक के बाद एक की बात करेंगे। We'll begin with the civil services. So here you can see a name whose name is Lord Cornwallis. लॉर्ड कॉर्नवालिस नाम का एक ब्रिटिश ऑफिसर था। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस जो ब्रिटिश ऑफिसर था, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी इंट्रोड्यूस किया था। Now what is bureaucracy? It is nothing else but a proper government system, एक प्रॉपर सरकारी सिस्टम जो पूरे देश को चलाती है। अभी ये सरकार में बैठने वाले जो लोग होंगे, ये ऐसे अनपढ़ लोगों को तो हम बिठा नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे पढ़े लिखे लोगों को ही बिठाएंगे। तो अगर किसी को सरकारी नौकरी चाहिए, अगर किसी को ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी में काम करना है, तो उनको सबसे पहले ICS एग्जाम को पास करना पड़ेगा, दैट इज इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। So all those Indians and all those Britishers who want to participate in the administration of British India, अगर ब्रिटिशर्स जिस देश इंडिया को चलाते हैं, ब्रिटिशर्स जो हमारे देश इंडिया को चला रहे हैं,
उनकी सरकारी नौकरी अगर हमें चाहिए, अगर ब्रिटिश सरकारी नौकरी चाहिए, तो इंडियंस को ICS एग्जाम पास करना पड़ता था, दैट इज इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन. Those Indians who used to clear this ICS examination, उनको अच्छी खासी नौकरी फिर मिलती थी ब्रिटिश सरकार में. एंड मोर देन दैट हम देखते हैं कि इनको पगार भी अच्छा दिया जाता था. दे वर बीन गिवन गुड अमाउंट ऑफ सैलरी. ठीक है. सो फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि लिए काम धाम ईजी हो जाए ब्रिटिशर्स का इंडिया में, इसलिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने अपनी अपने एरिया पे जहाँ जहाँ पे उन्होंने जिस इंडिया के हिस्से को कैप्चर कर लिया है, उन्होंने उस एरिया को डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दिया और हर एक डिस्ट्रिक्ट का देखभाल करने के लिए एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को वहाँ पे खड़ा रख दिया. ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम क्या होता था? He used to collect revenues, he used to collect taxes, he used to give justice to the people, न्याय देता था. He used to maintain law and order, कानूनों का देखभाल करता था. लेकिन अगर किसी को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना था, तो उसको सबसे पहले ICS एग्जामिनेशन को क्लियर करना पड़ता था. I hope you guys have understood till here. In case if you have any queries, you can just post it in your chat box. Fine. Next, we will move on to the second and the third pillar of the entire British India. तो ब्रिटिशर्स की अपनी खुद की आर्मी थी इंडिया में, और उसके अलावा उनका खुद का अपना पुलिस फोर्स था इंडिया में. तो ब्रिटिश की आर्मी जो इंडिया में रहती थी, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर, उनके खाने का, रहने का, पीने का खर्चा सब इंडिया की ट्रेजरी से उठाया जाता था. अभी ब्रिटिशर्स को आर्मी की ज़रूरत क्यों पड़ी इंडिया में? तो उसका एक ही रीज़न है. हम देखते हैं कि इंडिया में ऑलरेडी 500 से ज़्यादा राजा हैं. इंडिया में पोर्चुगीज़ को इंटरेस्ट है, फ्रेंच को इंटरेस्ट है और डच को भी इंटरेस्ट है. तो इंडिया जिस देश को ब्रिटिशर्स ने कैप्चर किया है, उसको सेफगार्ड करने के लिए, उनके कैप्चर किए हुए टेरिटरीज को, उसको सिक्योर्ड रखने के लिए आर्मी, मिलिट्री की ज़रूरत थी. और अगर कोई भी इंडियंस ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठाते थे, इफ़ देयर यूज्ड टू बी एनी रिवोल्ट हैपनिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स इन इंडिया, तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इसी मिलिट्री को यूज़ करके वो उस रिवोल्ट को दबा देते थे, उसको सप्रेस कर देते थे. टॉकिंग अबाउट द पुलिस फोर्स, ब्रिटिश पुलिस जो इंडिया में थी, उसका क्या काम था? द पुलिस यूज्ड टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर. जो पुलिस फोर्स था ब्रिटिशर्स का इंडिया में, वो क्या करता था? वो कानूनों को एक लॉ में बांध के वो रखता था. दे यूज्ड टू लुक आफ्टर द लॉ एंड ऑर्डर. मीन्स if any Indian, if they used to break any rules and regulations made by the Britishers, then it was the police force who used to look after that. Okay, now we will talk about the fourth pillar of the British government. अगर हम ब्रिटिश सरकार की बात करें जो इंडिया पे रूल करती थी, इसका फोर्थ मेजर पिलर कौन सा था? देन इट वाज द जुडिशियल सिस्टम. अभी इस चीज को समझना बहुत जरूरी है. टॉकिंग अबाउट जस्टिस, ओके, जब भी ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं थे, तो जस्टिस कैसे दिया जाता था? तभी तो कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऐसा कुछ था भी नहीं. इंडिया में 500 से ज्यादा राजा थे. 500 से ज्यादा राजा के 500 से ज्यादा अलग अलग रूल्स थे, अलग अलग कानून थे और अलग अलग तरीका था जस्टिस देने का. So we had more than 565 kings ruling over India, and these more than 565 kings, they had their own way of giving justice to the people. What did Britishers do? We should thank Britishers that they introduced a good judicial system in India. अभी पूरे देश भर में जब भी एक ही सरकार रूल करती है, अभी पूरे देश भर में जब भी एक ही ब्रिटेन का राजा इंडिया पे रूल करता है, तो उसने इंडिया में एक कॉमन लॉ लेकर आता है. He introduces one common law for the whole country. And thankfully now, there were civil courts and there were criminal courts which had been established. अभी हर डिस्ट्रिक्ट में एक सिविल कोर्ट था और एक क्रिमिनल कोर्ट था जिसको फिर लगाया गया था.
किसी ने भी अगर मर्डर किया है, डकॉइटी किया है और देयर इज सम फिजिकल असॉल्ट हैपनिंग, तो उस इंसान को जस्टिस क्रिमिनल कोर्ट में दिया जाता था। अगर कोई फैमिली इशू है, प्रॉपर्टी इशू है, तो उसके लिए सिविल कोर्ट्स होती थी जहाँ पे फिर लोगों को उनके केस फाइट करने का हक दिया जाता था। एंड अबाउट द डिस्ट्रिक्ट्स यूज्ड टू बी द प्रोविंसेस, तो प्रोविंशियल लेवल्स पे फिर हाई कोर्ट्स होते थे। तो ऐसा कॉमन कानून इंडिया में कौन लेकर आता है? सो वन सच ब्रिटिश ऑफिसर, हिज नेम वाज लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले ये जो कानून लेकर आते हैं, जस्टिस, जो लॉ पूरे इंडिया के लिए एक ही लॉ होगा आज के बाद, ऐसा कॉमन कोड ऑफ लॉ लॉर्ड मैकॉले लेकर आते हैं, जिसको हम इंडियन पीनल कोड बोलते हैं। So this Indian Penal Code, it establishes an overall control of Britishers in India with the principle of equality before law. मतलब तुम कोई भी जात पात, कास्ट, कलर, रिलीजन, किसी भी रेस को अगर तुम बिलोंग करते हो, जब भी तुम एक ब्रिटिश कोर्ट में जस्टिस लेने जाओगे, तो तुम्हें समानता से, तुम्हें इक्वालिटी से जस्टिस दिया जाएगा। बट ऐसा कुछ होता नहीं है। हमेशा कोर्ट में बैठने वाला जो जज होता था वो ब्रिटिशर होता था, और जब भी इंडियन वहां पे जस्टिस लेने जाते थे तो उनको आधी बार जस्टिस मिलता भी नहीं था। टॉकिंग अबाउट गोइंग टू अ ब्रिटिश कोर्ट, अगर ब्रिटिश कोर्ट में जाके अगर तुम्हें जस्टिस लेना भी है, तो वो टाइम पे इट वाज सो एक्सपेंसिव बिकॉज यू वर सपोज टू अलॉट लॉयर्स, यू वर सपोज टू अपॉइंट लॉयर्स, you are supposed to pay to these lawyers in order to seek for justice. That is why we see that justice, it became very expensive in India. More than that, there were so many cases being filed in the criminal courts, in the civil courts, in the district courts, and in the high courts, that at one point of time, these cases used to be pending for many years coming ahead. These laws were written down in English. There were maximum number of people in India who did not even understand English. When Britishers they came to India, we Indians used to speak more than 1200 languages at a time. तो काफ़ी ऐसे इंडियंस थे जिनको ये इंग्लिश भाषा समझ में भी नहीं आती थी, और ये ब्रिटिशर्स कौन से नए कानून लेकर आते थे ये इंडियंस की समझ में भी नहीं आते थे. So new laws were difficult to be understood by the common people in India. Okay. We'll move ahead with the economic policies of Britishers. Fine. In case if you have any doubts still here, you can just post it in the chat box. We'll have a discussion over it. Cool then. Fine. There are 2-3 questions which have come up. I'll just discuss it at the end of the chapter then. Okay. So we'll begin with the next point of this chapter, and that is the economic policies of the Britishers. Economic policies, here we are talking about all the financial policies of Britishers. Policy का मतलब होता है कानून, rules. So there were some rules which had been introduced by the British officers in India in relation to India's finances, in relation to India's money, treasury. Talking about India, we see that India had been invaded by many of the invaders in the past. Britishers के आने के पहले there have been many invaders, there have been many foreigners who have come to India, they have tried to capture India. For example, Britishers के पहले इंडिया में मुगल्स आए थे, they came all the way from Persia. मुगल्स के पहले टर्किश सुल्तान्स आए थे इंडिया में all the way from Turkey. उसके भी पहले हम देखते हैं there have been constant attacks on the northwestern side of India. लेकिन जितने भी अटैकर्स इंडिया पे आए थे, ब्रिटिशर्स के पहले जो भी लोगों ने इंडिया पे हमला करना चाहा था, these people they for sure attacked over India, but then they liked this land so much that they started ruling over India. For example, when we talk about Mughals, when they came and they attacked over India, they loved India so much कि जो मुगल का राजा था वो इंडिया में ही आके सेटल हो गया.
So here in the past, before Britishers they came to India, हम देखते थे कि राजा इंडिया में आके वो इंडियन कल्चर में एब्जॉर्ब हो जाता है और वो इंडिया में ही रहने लगता है. But here, what was the worst part with the Britishers? Talking about Britishers, they came all the way from the country of Britain. Britishers जो है ये इंग्लैंड देश से, ब्रिटेन देश से एक तो आते हैं. This country is thousands of miles away from India. ये जो देश है वो हजारों किलोमीटर दूर है इंडिया से. And above all, what was even more important, ब्रिटेन का राजा उसने कभी इंडिया को देखा भी नहीं है. He is there in Britain, he is sitting there in his palace on the throne of Great Britain, and he has never seen India. He just sends few of his officers to India to look after this land and to give him time to time information. So this was the most biggest side effect of the British rule in India. यहाँ पे राजा जो है, राजा इंडिया में है ही नहीं. जिस जमीन पे वो रूल कर रहा है उस जमीन पे वो बैठा भी नहीं है. वो कहीं हजारों किलोमीटर दूर किसी और देश में बैठा हुआ है और इंडिया पे रूल कर रहा है. चलो रूल किया वो तो ठीक है, लेकिन इंडिया में जो इंडियंस थे इनके पैसों को वो लूट के वो अपनी जेब भर रहा है, वो उससे भी ज्यादा खराब है. अगर देखा जाए, then I had already discussed this last time. Talking about the country of England, it was the very first country where you can see industries coming up. अगर तुम्हें याद है, हमने ऑलरेडी ये चीज लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि इंग्लैंड वो कंट्री है, इंग्लैंड वो देश है जहाँ पे पहली बार इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है. For the first time you can see industrialization happening in the country of England. वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज बनाई गई थी, इन इंडस्ट्रीज में चलने वाली फैक्ट्रीज और जो मशीन्स, इन इंडस्ट्रीज में चलने वाली जो मशीन्स जो थी, उस मशीन्स में लगने वाले जो गुड्स थे, उस मशीन्स में, उन फैक्ट्रीज में जाने वाले जो रॉ मटेरियल्स थे वो इंडिया से जाते थे. So talking about India, India was actually a supplier of raw materials to the British industrialization. ब्रिटिशर्स का ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो कैपिटलिज्म को बढ़ावा देता है. इट गिव्स बर्थ टू कैपिटलिज्म. तो ब्रिटिशर्स ने अपनी वही कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इंडिया पे लगाई. ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो अपने फायदे के लिए देख रहे हैं, ना ही इंडिया के फायदे के लिए. So I hope you guys have understood till here. There are no queries till here. In case if there are, I'm going to show you some few more PPTs next time, which would be easier for you guys to understand them. Okay. Fine. So talking about the British factories, talking about the British industries, तो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज में लगने वाला जो रॉ मटेरियल था, ये रॉ मटेरियल इंडिया से जाता था, एंड इंस्टेड ऑफ दैट द ब्रिटिशर्स यूज्ड टू गिव अस द फिनिश्ड गुड्स, बट दैट वाज ऑफ नो यूज टू अस इंडियंस. ब्रिटिशर्स ने जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था वो उनके फायदे के लिए था, हमारे फायदे के लिए नहीं. So the capitalist economy which the Britishers they tried to bring about in India, it was for the benefit of the Britishers and not for the benefit of us Indians. Britishers को बहुत ही ज़्यादा economic gain होता है इससे, बहुत ही ज़्यादा benefit मिलता है इससे, और उसके दूसरे साइड पे हम देखते हैं that India was facing all possible economic exploitation. India इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट हो रहा था, इंडिया का ट्रेजरी लूटा जा रहा था, और मैक्सिमम पैसा ये ब्रिटेन के राजा के पास पहुंचता था. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द लैंड रेवेन्यू पॉलिसी. अभी एग्जैक्टली लैंड रेवेन्यू पॉलिसी है क्या? फार्मर्स खेती बाड़ी करके साल के एंड में जो भी पैसा, जो भी प्रॉफिट कमाते हैं, उसमें से a part of the profit was supposed to be given to the British officers. इसमें से थोड़ा हिस्सा प्रॉफिट का उनको ब्रिटिशर्स को देना पड़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? टैक्सेस. We call it as the revenue which the farmer
was supposed to pay it to the Britishers. लेकिन just imagine, अगर वो फार्मर ने पैसा नहीं कमाया तो साल के एंड में, ये समझ लो पूरा साल बारिश नहीं हुआ, या मे बी ये समझ लो कि बारिश बहुत ही ज्यादा हो गया, there were floods. So here one full year of the farmer has got wasted. उसकी जमीन पे कुछ भी कल्टिवेट नहीं हुआ, क्योंकि उसकी जमीन पे कुछ भी कल्टिवेट नहीं हुआ तो फार्मर को कोई भी मुनाफा नहीं मिला, फार्मर को कोई भी प्रॉफिट नहीं मिला, तो वो अभी ब्रिटिशर्स को टैक्स कैसे पे करेगा, वो ब्रिटिशर्स को रेवेन्यू कैसे पे करेगा। इसके वजह से जब भी फार्मर्स ब्रिटिशर्स को टैक्स और रेवेन्यू पे नहीं कर पाते थे तो उनको मारा जाता था, उनको पीटा जाता था, उनको टॉर्चर किया जाता था, और कभी कभी फार्मर्स की पूरी जमीनों को हड़प कर लिया जाता था। So when the farmers were not able to pay back the taxes to the Britishers, then at this point of time, the Britishers used to confiscate the lands from the farmers. वो farmers से उनकी जमीन हड़प लिया करते थे। Because of this, the farmers were very much upset with the Britishers, और हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे कि कैसे ये सारे फार्मर्स एक साथ आते हैं और कैसे वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फिर रिवोल्ट करेंगे। So I'll just quickly read away this entire thing. In case if you have any queries, just let me know. If not, then great, we'll move ahead with the next part. Before the British rule, we see that the villages were very much self-sufficient. जब तक ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं थे, हम देखते थे कि इंडिया के विलेजेस जो थे ये बहुत ही आत्मनिर्भर थे, सेल्फ सफिशिएंट थे, एंड दे वर वेरी फाइन विद इन देमसेल्व्स। गांव वालों को कभी गांव से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी इन ऑर्डर टू परचेज एनीथिंग फ्रॉम देम। गांव के अंदर जो भी कल्टिवेट होता था, फार्मर्स जो भी कल्टिवेट करते थे, वो अल्टीमेटली गांव वालों के बीच में ही बांट लिया जाता था। नाउ व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, अगर ब्रिटिशर्स के आने के पहले फार्मर्स अगर पूरा साल कोई भी खेती बाड़ी नहीं कर पाता, उसके पास अगर कुछ भी है नहीं, प्रॉफिट ही नहीं है, so such a farmer was exempted. Farmers को माफ किया जाता था from paying the taxes in case of the loss of crops if the crops were not cultivated. लेकिन now what happened, यहाँ पे क्या होता है, to increase the income, ब्रिटिशर्स को अपना मुनाफा बढ़ाना है, तो उसने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने आज के बाद इंडिया में लैंड रेवेन्यू सिस्टम में बहुत ही चेंजेस किए, टैक्स कलेक्ट करने के सिस्टम में बहुत सारा चेंजेस लेकर आते हैं। आज के बाद अभी फार्मर्स की जमीनों को नापा जाएगा, फार्मर्स की जमीनों को मेजर किया जाएगा, और हर एक एरिया के पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से उनके पास से टैक्स का वसूली किया जाएगा। मोर देन दैट, नाउ द टैक्स पेमेंट वाज कंपलसरी। आज के बाद फार्मर्स को टैक्स पे करना कंपलसरी है, और अगर फार्मर्स टैक्स पे नहीं कर पाते हैं तो उनकी जमीनों को जब्त कर लिया जाता है। And this is how we see that the Indian farmers were being exploited all over India. I hope you guys have understood till here. In case if you have any queries, you can stay back and rest of the people can leave. So there is one question in the chat box that why didn't Indians they fight against such injustice of the Britishers? Indians did fight against the Britishers for many a number of years. बहुत सालों तक Indians Britishers के सामने लड़ते थे, लेकिन शुरुआत में Indians के बीच में unity नहीं थी। उसके बाद unity आती है with Mahatma Gandhi becoming a national figure, and that is why we see that India gains its independence. Okay, so there is another question. What do you mean by bureaucracy? Bureaucracy is nothing else but an administrative system. और ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, ये ब्यूरोक्रेसी में काम करने वाले लोगों को ब्यूरोक्रेट बोला जाता है। ओके, सो द ऑफिसर्स वर्किंग इन दोज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, दे आर कॉल्ड एज ब्यूरोक्रेट्स। Nishita, I hope your, sorry, not Nishita, it's Deepika. I hope your question has been answered with this.